वेलकम एवरीवन। एक जब आप कभी सड़क पे निकलते हैं गाड़ी लेकर या पैदल, तो आप कहीं जाएंगे, आप कुछ काम करेंगे, वापस घर आएंगे। बट कभी कभी आपकी गलती की वजह से या किसी और की गलती की वजह से वो वापस आ पाना नहीं होता, या फिर जिस हालत में, जिस खुशी से आप गए थे, उस खुशी से या उस हालत में आप वापस नहीं आ पाते। तो वैसे ही हमारे साथ एक जेंटलमैन है, मिस्टर हरमन सिंह सिद्धू। वेलकम सर। Thank you. Mr. Sidhu is the founder and the president of Arrive Safe, an NGO that has been working on road safety and on promoting sustainable transportation since 2007. पिछले 17 सालों से ये रोड सेफ्टी के लिए काम कर रहे हैं। एंड इनकी जो NGO है Arrive Safe, that has been awarded with Volvo Sustainable Mobility Award 2013, Volvo Sustainable Mobility Award 2015, Prince Michael International Road Safety Award 2017, एंड इट हैज़ बीन फेलिसिटेटेड बाय सेक्रेटरी जनरल इंडियन रोड कांग्रेस। एंड यहाँ पे दीवार पे बहुत सारे अवार्ड्स हैं, मतलब अगर इनकी बात करें तो पूरा टाइम इसी में निकल जाएगा। बट सर, लेट्स कट टू द चेस एंड बिगिनिंग स्ट्रेट विद द क्वेश्चंस। व्हाट मोटिवेटेड यू टू बिगिन विद अराइव सेफ? See, it was a bad personal experience, right? Like I was traveling. I've been born and brought up in the city, Chandigarh. So as you know, like we all go uphill, and that was something which was a habit for me. So during one of those visits, our car rolled down into a gorge, and I got a spinal injury. So that was a total life changer for me, because I was on few seconds prior to that I was a normal person walking around like any other person, but within seconds life changed and I was in a wheelchair, and it took a lot of time for recovery. So that's when I understood what a road crash is and how it can change lives. लाइफ चेंज। Yes. सर, जैसे कि आपने बताया आपका एक्सीडेंट अक्टूबर 1996, तो इनिशियली हाउ डिफ़िकल्ट वाज इट टू कम टू टर्म्स विद द फैक्ट दैट ओके, पहले मैं नॉर्मल था, अब मुझे व्हीलचेयर की मदद से बाकी ज़िंदगी करनी पड़ेगी अपनी? It was very tough. It took nearly 2 years for me to get out of the bed and into the wheelchair. So getting into the wheelchair life was in a way something positive for me at that time, because for a very long period, like nearly 2 years, I was in the bed most part of the day. That was some progress. Yes. So but like still we always expect to be what we were. Yes. So it never happened, but the initial few months definitely they were very tough. ओके सर, आपने आपकी जो अराइव सेफ की जो वेबसाइट है उस पर लिखा है कि आपके मेंटर थे मिस्टर अमिताभ ढिल्लों, तो उनका सपोर्ट, जैसे कि उसमें लिखा गया कि ही हुज मोटिवेशन प्रूव्ड टू बी अ ग्रेट ड्राइविंग फोर्स फॉर मी इन माई डिफ़िकल्ट डेज। तो उनका सपोर्ट और सर फैमिली का सपोर्ट कैसे आपको हेल्प करा उस डिफ़िकल्ट टाइम में? See, I'm very lucky to have some very good friends, and obviously the family support was always there. So none of them changed a bit, because my life changed forever, but their way of looking at me, that never changed. So that love, that affection, that helping and supporting attitude, that never changed. Rather it increased, which was a very motivating thing. I've seen many people who get into this kind of a problem and they don't have a support system around them. They lose heart. Yes. So naturally there's one challenge where one is not able to move a bit, and then suddenly you see the people around you changing. So that way I'm very lucky. Very lucky. So you talked about Mr. Tino. He was SSP traffic in Chandigarh at that time in the year 2005. Okay. So that is when we started working in this field of road safety. Okay. So before that, I used to think that we need to do something about this menace of road crashes and how to reduce them, but I was not getting a clearer picture as what can be done. You knew what you had to do, but how was missing? Yes, it was missing, because it is a very complex issue. Yes. So it's been 17 years nearly since we got it registered. Yes. So nearly 19 years since we started this, but after
these nearly 2 decades. So all we have understood is that this problem is so complex and there is such lack of will from the political system or the governments that it is a real challenge to reduce the number of fatalities and the crashes. ओके सर। सर जैसे कि भाई आपने कहा कि 19 साल हो गए हैं, 19 years it's been. So 19 years when the NGO was new, it was like an infant in its infancy stage. What were the challenges back then, and now after 19 years with so much recognition and so much awards, what are the challenges now that the NGO faces as an organization? The challenges remain nearly the same. So the one big difference is there are two ways of operating. One is where the government system, it kind of supports you, right, in getting the things in place. But once you know about those issues, you know more about them, तो फिर कभी कभी ऐसे होता है कि भाई they start ignoring or slowing down things whenever it starts affecting the economy. So there are two things. One is economics or business, and second is safety. So if the safety thing is coming in way of business or money making, so उसमें दिक्कत आती है. फिर वो पैर पीछे हटा लेते हैं. Yes. So इस चीज़ के like we have been raising some flags about this. Okay, लेकिन उस चीज़ के ऊपर definitely there are big challenges. सर जैसे अभी आपने कहा कि लैक ऑफ पॉलिटिकल विल है, या जैसे वो मनी मेकिंग जब एस्पेक्ट आता है तो फिर उनकी सेफ्टी का कंसर्न खत्म हो जाता है. बिल्कुल. जब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जो अपने हाईवेज हैं उस पर आप नोटिस करोगे शराब के ठेके हैं नियरली एवरी फ्यू किलोमीटर्स. क्वेश्चन है सर. सो उसके बारे में वी हैड स्टार्टेड द पिटीशन इन 2012. सो फॉर सम टाइम वो हटे, राइट, बट नाउ आफ्टर मोर देन अ डेकेड, 12 years, so they are back on along the roads. They are bigger, more attractive, and कोर्ट में हमारा वो मामला चल रहा है. एंड अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट का पूरा जोर है कि भाई यहाँ पे ठेका चले हाईवे पे, विच इज अनफॉर्चुनेट. Very unfortunate, because liquor consumption and driving after that yes, is one of the major. Because once you see it, right, अब suppose I am going from here to Delhi. Yes. ठीक है, मैं वहाँ पहुँच गया, I party, I do whatever, but on the way, if you tempt somebody, if you lure somebody, it's very difficult for a habitual drinker to control himself. Yes, even otherwise, like 4 of us are going, suppose. Yes. तो किसी का मूड बन गया तो एक ठेका छोड़ोगे, 2 छोड़ोगे, कितने छोड़ोगे? सही बात. कहीं तो रुक ही जाओगे. So that's what they want. सर अब जैसे चंडीगढ़ अपने शहर की बात करते हैं अगर, तो हमारे शहर में अब सोशल मीडिया पे एक मजाक की बात बनी हुई है कि जी ये शहर इस चीज़ के लिए फेमस है, ये इसके लिए फेमस है. चंडीगढ़ किसके लिए फेमस है? चलान के लिए फेमस है या स्ट्रिक्ट रूल्स के लिए फेमस है. उसके बावजूद अगर आप कोई रीजनल पेपर उठा के देख लो, ट्रिब्यून, चंडीगढ़ ट्रिब्यून, HT चंडीगढ़ उठा के देख लो, रोज़ कुछ ना कुछ, यहाँ गाड़ी ठुक गई, इतने लोग एक्सीडेंट में मारे गए. इतने स्ट्रिक्ट लॉज, इतने मतलब कड़े लॉस के बावजूद भी क्या वजह है कि चंडीगढ़ में भी ये सिचुएशन अभी तक अंडर कंट्रोल नहीं आई है? देखो, पहले से कम ज़रूर हुई है. देयर आर टू थिंग्स. जैसे ये पीछे बोर्ड है, इट्स अराउंड द UN Decade of Action for Road Safety. So now it is 21 to 2030. So earlier it was 2011 to 2020. So that was a 10-year plan. Okay. By the United Nations for all the countries which come under them. कि भाई जो पहले 5 साल में लेवल पे लेकर आना, सपोज देयर आर 100 एक्सीडेंट्स इन चंडीगढ़ और डेथ्स इन चंडीगढ़, तो उसको 100 पे मेंटेन करना एंड देन रिड्यूस करना. तो इस चीज़ में तो कामयाबी मिली है जी. सो फ्रॉम 3 figures इट्स कम डाउन टू अराउंड 80 persons dying every year in Chandigarh. But still with that success we cannot say कि भी बहुत बढ़िया हो गया. तो चलानिंग तो चलानिंग इज वन एस्पेक्ट. इसमें काफ़ी और चीज़ें होती हैं ना, रोड इंजीनियरिंग एंड देन व्हीकल इंजीनियरिंग एंड द स्पीड सिस्टम जिस पे हम चलते हैं जी. आपने चंडीगढ़ में देखा होगा साइकिल ट्रैक्स बने हुए हैं, तो उसकी वजह से प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हीकल कोलाइडिंग विद अ साइकिलिस्ट
दैट हैज रिड्यूस्ड, कम हो गई है। तो इसकी जो स्टडी है दैट इज एवरी, जब भी कोई इंसिडेंट होता है, जैसे आपने परसों की न्यूज़ देखी होगी, 2 people died, one girl was going to appear on her exam, वो ऑटो में बैठे आ रहे थे और दूसरी तरफ से स्कॉर्पियो आई, इट वाज फास्ट एज रिपोर्टेड, तो दे हैड a head-on collision and 2 of them died unfortunately। तो जो भी ऐसा इंसिडेंट होता है, चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस हैज अ डेडिकेटेड टीम which goes there and does the study कि गलत क्या हुआ, कॉज क्या थी, Cause क्या क्या था? आगे क्या हमें उसको बचाना चाहिए। इम्प्रूव कैसे करना, जी। सो विच इज़ अ गुड साइंटिफिक अप्रोच। और जो ये चलान वाली बात है, डेफिनेटली ये एज ए लेमैन, यस इट इज़ अ डेटरेंट, और धीरे धीरे लोगों को उस चीज़ की आदत पड़ जाती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल सीट बेल्ट, इट्स नॉर्मल प्रैक्टिस नाउ, यस हैबिचुअल हो जाता है हाँ। धीरे धीरे। यस सर, अगर टेक्नोलॉजी की बात करें आजकल, जैसे अब चलान की हमने बात करी, सीट बेल्ट की बात करी, तो आजकल कैमराज इंस्टॉल कर दिए गए हैं जो आपकी स्पीड को भी मेजर कर देंगे। अगर आपकी स्पीड ओवर 62 स्पीड लिमिट है चंडीगढ़ की, इफ़ यू आर क्रॉसिंग 60 तो दे विल इशू अ चलान। सीट बेल्ट अगर आपने नहीं पहनी तो आपकी वीडियो कैप्चर हो जाएगी, तो हो जाएगा। तो आप टेक्नोलॉजी की कंट्रीब्यूशन कहाँ देखते हैं टू इंश्योर रोड सेफ्टी या पब्लिक को अवेयर करने में अबाउट रोड सेफ्टी? देखो टेक्नोलॉजी इज़ अ गेम चेंजर, लेकिन इसमें जो चलान्स की बात है या इन्फोर्समेंट की बात है, इट्स नॉट बी ऑन द रोड यूज़र ओनली, यस राइट, दैट इज़ वन पॉइंट दैट आई ऑलवेज मेक, कि भाई जो एजेंसीज रोड्स को ओन कर रही हैं, सिर्फ सिटी की बात नहीं है, इवन ऑन दी हाईवेज, बिकॉज ज़्यादा जो एक्सीडेंट्स हैं या डेथ्स होती हैं वो मेन रोड्स हाईवेज पे होती हैं। तो yes, as a road user it is my responsibility to ensure कि I am following the rules। लेकिन if you are suppose the highway authority जिसने वो रोड बनाई है या वो कंपनी है, तो अगर आपकी तरफ से कोई कमी रह रही है जिसकी वजह से वहाँ वो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, तो you are equally responsible, rather you are more responsible। तो जो पनिशमेंट मुझे राइट वे मिल जाएगी if I cross 60 to 62, तो वो चीज़ आप पे लागू नहीं होती, जो कि होनी चाहिए। तो कागजों पे है, लेकिन बट इट नेवर गेट्स इम्प्लीमेंटेड। प्रैक्टिकली वो होता प्रैक्टिकली होता नहीं, होना चाहिए। जी सर, जैसे आपने कहा कि सस्टेन्ड एफर्ट के बाद जो ठेके बनाए गए थे वो हटा दिए गए थे। अब सिंस अभी आपने नया अपडेट बताया, हमें नहीं पता था कि वो दोबारा वहाँ रख गए हैं, तो अब आपकी दोबारा कोशिश रहेगी उस बैटल को दोबारा लड़ने में कि वहाँ से अब दोबारा हटाए जाएँ? बिल्कुल, ये लड़ाई जारी है। तो it never actually stopped because I never anticipated कि भी इतना अथॉरिटीज़ की या गवर्नमेंट की एफर्ट इसमें जाएगी कि भी दे हैव टू बी ऑन द हाईवेज। तो इन स्पाइट ऑफ द क्लियर डायरेक्शन बाय द सुप्रीम कोर्ट ओवर द पीरियड पिछले कुछ 3-4 सालों में, सो थिंग्स हैव डिटीरियोरेटेड एंड दे आर बैक ऑन द हाईवेज। लेकिन एट द सेम टाइम हमारी पिटीशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में है, सो वी आर एक्सपेक्टिंग इट टू कम ऑन हियरिंग सून एंड वी शुड सी अ चेंज अगेन। सर, गुड लक टू यू ऑन दैट। थैंक यू। एंड सर, जैसे अभी आपने कहा कि पॉलिटिकल विल या गवर्नमेंट का सपोर्ट कम रहता है जब बिजनेस पे बात आती है, तो कभी गवर्नमेंट की तरफ से आपकी एनजीओ को डायरेक्ट कुछ सपोर्ट आया है, मे बी फंडिंग के तौर पे या किसी भी और तरीके से अराइव सेफ को गवर्नमेंट ने हेल्प करी हो? नहीं, नहीं ऐसे हेल्प वाली तो कुछ देयर इज नथिंग, बट यस once there was a small grant of 50,000 rupees, so which was a project based thing, but otherwise it's our policy that ना हम डोनेशन लेते हैं ना किसी तरीके की ऐसी कोई कंट्रीब्यूशन, whatever financial thing is required, so that is all self generated. So Sir, we if don't you could take elaborate donation on the self generation part, if you don't mind. Yeah. Funding कैसे होती है exactly? Yes, so there are two ways. One is ज़्यादा करके जैसे NGOs में होता है कि you seek donation or contribution from people, right, or agencies, let it be government or Private. international agencies, whichever, your corporate social responsibility. लेकिन the second part is कि भी you do a project, for example हमने road safety manual design किया था for Chandigarh Traffic Police, which is officially being used by the Chandigarh administration, and similarly Haryana has implemented it. So for doing that kind of consultancy work, so we get paid for that.
So that money or the kitty gets used for this purpose. Okay. So that's how we are operating. That's how you generate funds. Yes. Okay sir. तो जैसे अभी आपने कहा कि अगर कोई किसी का अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट हो जाता है तो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की एक बहुत एफिशिएंट टीम है जो वहाँ जाके उनको जगह को कॉज को क्वेश्चन करेगी, पता लगाने की कोशिश करेगी क्या हुआ है. तो अगर किसी जो विक्टिम है, मे बी इफ़ ही और शी हैज़ डाइड देन हिज फैमिली, और इफ़ ही और शी हैज़ बीन इंजर्ड देन द विक्टिम, तो उसको अराइव सेफ से कुछ मदद मिलती है या हाउ डू यू हेल्प द विक्टिम्स? नहीं, हम डायरेक्टली विक्टिम्स को हेल्प करने वाला जो एस्पेक्ट है उस पर हम काम नहीं करते, बिकॉज it is technically called that there are 5 pillars of road safety. One is the road safety management, which is at government's level. Second is having safe roads, okay, where we work. Third is safe vehicles. The automobile industry. Yes, automobile industry, let be two-wheeler, cycle, or any other big vehicle, four-wheeler. And fourth is road user behavior, जिसमें licensing भी आ जाती है आपकी, enforcement, all these things. And fifth is post-crash trauma care, just in case all these 4 fail and still somebody gets injured or unfortunately dies. So we are not working in this fifth field. You're not currently. So do you plan to work on that? No, not as of now, because यही जो 3 चीज़ें हैं, primarily the management part, safe roads and road user behavior, अगर हम इसमें ही कुछ कामयाबी ला सकें, so that will be good enough for us. ऑटोमेटिकली मे बी दूसरी चीज़ें अपने आप कम हो जाएंगी, इफेक्ट होंगी, एक्चुअली उसकी ज़रूरत ही कम पड़ेगी, बट लेकिन उसमें जो सिस्टम चाहिए या रिक्वायरमेंट चाहिए और फोकस इज नॉट ऑन दैट, बिकॉज एवरी एस्पेक्ट इज सो वास्ट, तो हम उसको नहीं कर सकते, ह्यूमनली नॉट पॉसिबल टू कवर एवरीथिंग. तो सर, योर पर्सनल एक्सपीरियंस एज एन इंडिविजुअल, लाइक अब ऑर्गेनाइजेशन आप चलाते हैं, बट आपको पर्सनली एट द एंड ऑफ द डे आपको सेटिस्फैक्शन होती है? आपको कैसा एक्सपीरियंस रहे 19 सालों का कि आज आप जहाँ देखते हैं मेरा इतना लंबा सफ़र रहा है, मैंने इतना कुछ कंट्रीब्यूट करे रोड सेफ्टी के लिए, तो एज एन इंडिविजुअल हाउ डू यू फील अबाउट दैट? दैट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. इसमें यही है कि भाई लगे रहो, कीप ट्राइंग. देयर आर टाइम्स व्हेन यू गेट सक्सेस एंड देयर आर टाइम्स व्हेन एवरीथिंग फेल्स. और उसमें ये होता है कि आपने 4-5-6 साल एफर्ट की किसी चीज़ पे एंड इट कम्स टू अ नॉट, इट टोटली फेल्स फॉर वट एवर रीज़न. सो दैट नेचुरली इज डिसअपॉइंटिंग, बट यू कैन नॉट स्टॉप देयर. तो इस चीज़ पे वन हैज़ टू कंटिन्यू वर्किंग ऑन इट, मूव ऑन टू अदर थिंग एंड बिगिन अगेन. यस, एंड मे बी उसी चीज़ के ऊपर लाइक विद अ डिफरेंट स्ट्रेटजी, सो दैट बिकॉज इट इज़ साइंटिफिकली प्रूवन. जैसे हम वो ठेकों की बात कर रहे थे विच आर लिकर शॉप्स, तो दैट इज साइंटिफिकली प्रूवन दैट ड्रंकन ड्राइविंग हैज़ एन इम्पैक्ट, डेफिनेटली, राइट? So similarly, not wearing a seat belt, not buckling up, or not wearing the helmet, how it increases the risk of a death or a serious injury. So that is scientifically proven, but it takes time. अब चंडीगढ़ के सपोज आज ही कैमराज बंद हो जाएं, जस्ट हाइपोथेटिकल थिंग, तो इमीडिएटली आज तो आप देख रहे हो कि लाइटों पे लोग ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पहले खड़े हो रहे हैं, तो यू पब्लिश इट इन द पेपर कि कल से कैमराज ऑफ हैं, तो आप वही लोग ज़ेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर देखोगे आप उनको, एंड दे हैव नो आइडिया कि व्हाई दे आर डूइंग दिस, बट दिस हैपेंस सबकॉन्शियस. दैट इज जस्ट ह्यूमन नेचर समवे. सर, अगर कोई कॉमन आदमी, मेरे जैसा आदमी, अगर अराइव सेफ का पार्ट बनना चाहे तो हाउ कैन वी बिकम अ पार्ट? सिर्फ आप ईमेल कर सकते हो अपना ब्रीफ CV, सो वी कैन से, बिकॉज देयर आर डिफरेंट एरियाज वेयर वी आर वर्किंग. तो उसमें आप लेट्स से 3 महीने के लिए यू वांट टू एज अ स्टूडेंट एनरोल देयर, so we can, for youngsters normally we conduct studies where you can go and have an interactive session with road users. That's just an example. So, and similarly there are certain other projects where it can be seen as per requirement. Okay, sir. So the email ID is arrivesafe@gmail.com. arrivesafe@gmail.com. Sir, before we conclude, a message that you would like to give to the viewers? Now, to all the young viewers, please make sure that before you come onto the road, remember your family, your parents, they are waiting for you back home.
So have fun, enjoy your life, but don't take risks while driving or being on the road. It is never a good idea. That is one thing which I'll request you all. And one thing, try doing it, stop or reduce honking. You will find yourself to be a better and a safer driver. Thank you. Thank you very much, sir. Please. Pleasure.